Along with the elections, and I'll get to that, the current situation of the country was discussed. The political situation was discussed. The threat to political stability was discussed. The concerns about Pakistan reaching a crisis point was discussed. And before I get into the details, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो असूली फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ लेना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है और इस बुरहान से निकालना है। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। तो हम आज भी पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए उस अंदाज में अपने फैसले कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि Pakistan People's Party does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. There are two other groups, the independent group and Muslim League Nawaz, that have more numbers than the Pakistan People's Party in the National Assembly. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government and of a PTI-led government. That leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup. We also don't want to see political chaos in the country. We don't want to see perpetual crisis in the country. What are our options? If PTI doesn't want our votes, and if Muslim League Nawaz doesn't form a majority, and if I am not a Prime Minister candidate, and this House fails to elect a Prime Minister, and it fails to form a government, then we will have to go back for re-elections. And this will lead to another perpetuation of this political crisis. Political stability will not return. In fact, political instability will increase. And the consequences of that, more so than me or you, will be faced by the people of Pakistan, who are at this moment facing not only a political crisis, but an economic crisis, the very real threat of terrorism, and the dangers of climate change. So the Pakistan People's Party has decided that we ran this election on a manifesto, and a manifesto on issues of, can you hear me? Yeah. A manifesto on issues of public importance, including our Awami Muashi Muaida, and my commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. So to that end, the Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan, to ensure that a government is formed, to ensure that political stability is restored, and that a government can be formed that can get to the work, get to
get to the point of doing the job of the people of Pakistan. In that context, the Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage with other political parties. تو جہاں تک حکومت سازی کا اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے جو حکومت سازی کا جو عمل ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنانی ہے جو کہ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہمارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج بھی کرے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اس بحران سے ہم نکالیں، پاکستان کو ایک اس سمت پہ لے کے جا سکے جو کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. پاکستان کے عوام نے اب اس الیکشن میں جیسے بھی ہوا اس الیکشن میں حصہ لیا اور اب پاکستان کے عوام مزید کیوس نہیں چاہتے، پاکستان کے عوام مزید پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں چاہتے. وہ اپنے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بحران سے ہم پاکستان کے عوام کو نکالیں. میرے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں جو میرے پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کافی اعتراضات اور ایشوز اٹھائے جہاں تک ہمارا مسلم لیگ لوگ کے دوستوں کے حوالے سے کہ 18 مہینے کے لیے ہم ان کے ساتھ حکومت میں رہیں اور وہ جو میرے پارٹی کے خاص طور پہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پختونخوا دوسرے صوبے سے سارے صوبوں سے تعلق رکھنے والے جو میرے پارٹی کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جس طریقے سے ان کا کام نہیں ہوئے، ان کے مسائل حل نہیں ہوئے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ ضروری ہے کہ ہمارا جو کمیٹی بننے جا رہا ہے مسلم لیگ نون سے دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے کہ اس کنورسیشن میں جہاں ہم حکومت سازی کی بھی بات کریں کہ ہم انشور کریں کہ ہم اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں وہ دور کیا جائے. جہاں تک اس الیکشن کے سوال ہے as far as these elections are concerned unfortunately ماضی کی طرح اور ہر الیکشن میں جیسے ہم نے دیکھا 2018 پھر 2013 ایٹسٹرا اس الیکشن میں بھی شکایت اعتراضات اٹھائے گئے اور میرا پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنے طرف سے بھی اعتراضات ہم سے شیئر کیے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، جہاں تک دھاندلی کے الزامات ہیں، جہاں تک irregularities کا سوال ہے، تو اس پہ ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC will collect all such complaints as far as this election was concerned. اور ہمارا ان اختلافات کے باوجود ان اعتراضات کے باوجود اس احتجاج ان الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں ان کو قبول کریں گے in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability. مگر ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ہم سب مل بیٹھ کے تمام سیاسی جماعتوں مل بیٹھ کے ان کمیوں کو ہم اس دفعہ پورا کریں تاکہ آنے والے جب بھی الیکشنز ہو ان الیکشنز میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. دوسرے جو ہمارے اعتراضات ہیں جو فورمز موجود ہیں جہاں تک الیکشن کمیشن ہے یا پارلیمنٹ ہے ایٹسٹرا ہم وہ فورم ضرور استعمال کریں گے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے صدر زرداری صاحب سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شکایتیں اٹھائی تھی اور صدر زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو یقین دہانی دلائی تھی کہ ہمارا جو یہ شکایتیں ہیں یہ ایڈریس ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ شکایت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ رہا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت
शिकायतें हैं, एतराज़ात हैं जो हम जमा करके एड्रेस करवाना चाहेंगे। मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में ये भी वालिद साहब से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से करवाया कि अब आप इस चीज़ का फैसला करवा दें कि जो आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, हम आपको सबूत देंगे, हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, हम आपको प्रूफ्स देंगे, और वालिद साहब पे हम सब भरोसा भी करते हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी हुआ है इसको ज़रूर हमें एड्रेस करने का वो ना सिर्फ मौका मिलेगा, मगर उम्मीद ये है कि इंगेजमेंट और इस प्रोसेस के हिस्सा बनने के नतीजे में हम इन इश्यूज को एड्रेस कर सकेंगे। ये नहीं हो सकता कि हर इलेक्शन में वही एतराज़ात हम उठाते रहें, दूसरे भी उठाते रहें, कौन सा सच्चा है कौन सा नहीं है वो सामने आता ही नहीं है और उसका इलाज ना निकल जाए। तो हम चाहेंगे इन द लार्जर कॉन्ट्रेस्ट of political stability in Pakistan, that this issue is also addressed. So in conclusion, the Pakistan People's Party has made the decision that while we may not ourselves be a part of sort of the cabinet of the government on an issue-to-issue basis and on major votes, our committee will engage with political parties, and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan कि जो chaos आपको नजर आ रहा है अपने टीवी स्क्रीन्स पे, ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज इतने सारे पॉइंट्स गिर चुके हैं अगले दिनों में, ये जो इंटरनेशनल इदारे परेशान हो रहे होंगे कि या पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा नहीं आएगा, जो पाकिस्तान के अवाम फिक्रमंद हैं कि इस हालात में क्या हमारे मसाइल हल करेंगे, मैं उनको यकीन दहानी दिलवाना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान बनेगा। पार्लियामान वो फोरम है जहाँ आपके मसाइल हल करवाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए नहीं मुल्क के खातिर इंश्योर करेंगे कि ये अमल जो है, जो अब हुकूमत साजी का अमल है, कि ये मुकम्मल हो इंशाअल्लाह ताला, और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो, हुकूमत चल पड़े, ऐसे ना हो कि हम एक नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़े और एक बार फिर इस पूरा सिलसिला में दिखेला जाए जिसके नतीजे में पॉलिटिकल केओस के अलावा हमें कुछ नहीं मिलना। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सवाल का जवाब लूँगा। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब कुंडली साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कंडक्ट करे, वो एक एक करके आपसे सवाल करे। मैं 100 सवाल का जवाब एक वक्त नहीं दे सकता। जैसे बिलावल आपसे एक सवाल है, उसके दो पार्ट हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत हर हिस्सा लेने वाली जो जमात है वो इस इलेक्शन पर रिजर्वेशन और धंधी के इल्जाम आयद कर रही हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि री इलेक्शन की तरफ जाने दीजिए सूरत को, ताकि क्लियर मैंडेट मिल सके? नंबर 1। नंबर 2, आपने फरमाया कि हम बदाते नहीं लेंगे, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अगली कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे या हुकूमती बैंकों का हिस्सा होंगे? जहाँ तक आपने री इलेक्शन की बात किया है, आप मुझे बताएं कि एक तो कैसे आपको पता कि क्लियर मैंडेट मिलेगा? अभी हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया, सबका ख्याल था कि क्लियर मैंडेट आएगा और क्लियर मैंडेट नहीं आया। ना इंडिपेंडेंट पीटीआई वाला उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मुस्लिम लीग नवाज उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं हुकूमत बनाऊं। अब अगर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हमारा खून पसीना पे मेहनत इस इलेक्शंस में होती है, हमारे लोग शहीद होते हैं, उन पे कातलाना हमला होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप कहें कि आप इलेक्शन बस आसानी से करें। और अगर हम इस इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इसी किस्म के केओस मुझे नजर आ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रहा है, और
उसके नतीजे में जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे मुझे ये भी नजर नहीं आ रहा है कि कोई सियासी जमात उनको कबूल करेंगे। तो इससे मेरा ख्याल में जो मैसेज पाकिस्तान के अवाम भेज रहे हैं, लेकिन हमारा सियासतदान उस पैगाम को सुन नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि सियासी जमातों आपस में मिलकर बात करें, काम करें। अगर वो चाहते थे कि वो किसी एक जमात को चाहते थे तो वो उसी एक जमात को चारों सूबों को मैंडेट मिल जाता। पाकिस्तान के अवाम ने स्प्लिट मैंडेट इसलिए दिया कि किसी एक का जोर जबरदस्ती पे ना चले, आप सब मिलके बात पार्लियामान के अंदर बात करके हमारा मसाइल का हल निकालें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई आज भी एक आप समझे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें। तो ना एक पॉलिटिकल फोर्स बात करने के लिए तैयार है, दूसरा पॉलिटिकल फोर्स के साथ भी बात तो करते हैं मगर अब सुनने भी पड़ेंगे। अगर सुने बगैर वो अपने ही काम करेंगे, बिस्मिल्लाह सो करें, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की होगा, तो पाकिस्तान के निजाम का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ऊपर ये अब हम अपने लिए ये समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी मुल्क के हालात हो, जैसे भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखती है कि ये जमात हमें इंस्टेबिलिटी, केओस, गैर जमहूरी कॉन्सिक्वेंसेस से बचाएगी। तो वही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान खप्पे का नारा उठाते हुए इस आग को बुझाने की कोशिश करेगी। जी सती साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा ताकि जो भी हमारे एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी तय किया जा सके। वो अपोजिशन लीडर में तो मेरे नहीं ख्याल में मैं बन सकूंगा। आईनी ओहदे भी नहीं लेंगे चेयरमैन साहब, आईनी ओहदे जो है बड़े 3 सती साहब। बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहली दफ़ा बलूचिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और लोगों की बड़ी तवक्को है पीपल्स पार्टी से। तो सीएसकी ने क्या फैसला किया है कि क्या वहाँ पे भी आप हुकूमत साजी करने जाएंगे, क्योंकि सिर्फ को तो आप वैसे ही जो है आपका वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। अरीबा साहब, support for the Prime Minister candidacy, is it conditional or unconditional? Are you going to back Nawaz or Shahbaz for this? And my other question is, are you going to take President and governorship in the President? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position, but we will support a political party without becoming part of the government in the shape of, ministries or sort of a PTM2 का जो लोग कह रहे हैं, तो उस तरीके से हम part of the government नहीं बनेंगे। मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं उस पे हम ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपने सवाल किया, शायद आपने भी सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे हक है हम इन इलेक्शंस में लड़े। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास 17 सीट्स थी नेशनल असेंबली में, तब भी हमने स्पीकर के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो इस बार ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की या किसी भी जमात की वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं,
वो उन जमातों का फैसला है कि वो कौन अपने उम्मीदवार बनाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे कि कौन हमारे उम्मीदवार होंगे, वो तो पार्टी का फैसला होगा। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर ज़रदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सदर ज़रदारी साहब मेरा वालिद है और वो जाके प्रेसिडेंसी में बैठे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरा मुल्क में एक आग फैल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए, तो वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि सदर जरदारी एक बार फिर वफाक का ये ओहदा संभाले और हमारा मुल्क को इस क्राइसिस से बचाए। चेयरमैन साहब, यासिर मलिक साहब, पावर शेयरिंग बात हुई है। जी गुरमानी साहब, जी गुरमानी साहब। राहुल साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं की। मौजूदा इंतखाबात में तो 2018 की तरह कई सवालात भी उठ रहे हैं। आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आज़म को वोट तो देने जा रहे हैं, लेकिन आपका तजर्बा और तज्जिया क्या कहता है कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो कितने अरसे के लिए आप देख रहे हैं कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर टिक सकेंगे? तो मेरा तो हमेशा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ज़रूर ये मौक़िफ़ होगा, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट अपने टर्म्स कंप्लीट करे और उसमें ये भी आता है कि अपना वज़ीर आज़म भी अपना टर्म मुकम्मल करे। जहाँ तक जो आपने द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज दिस कि अगर जो भी मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा, अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफरत और तकसीम की सियासत करना है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा कि कुर्सी की बात नहीं है ये कि हमारा वफाक, हमारा जमहूरियत, हमारा निज़ाम बचे। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग, तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि वो अपने लिए ना सोचें, कि वो अपनी सियासत का हम सब फिक्र करते हैं, लेकिन इस वक्त अब पाकिस्तान की फिक्र करें। ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल का फ़ायदा इस मुल्क के दुश्मन उठाने चाहेंगे, इस मुल्क के मुखालिफ उठाने चाहेंगे। हमें ये जिम्मेदारी अपनाना चाहिए कि हम सियासत करें, सियासत के दायरे में रह के सियासत करें। हम इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ें। अब सियासत नहीं, इंतहा पसंदी का सियासत किया जा रहा है, ज़ाती इंतकाम का सियासत। तो वो जब तक हम एड्रेस नहीं करेगा, और इट टेक्स टू टू टैंगो, दोनों हाथ से ताली बजता है, ये जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, तो जो आप सवाल कर रहे हैं बड़ा सही सवाल है और बड़ा मुश्किल होगा कि वो कॉन्टिन्यूटी जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगा, बड़ा मुश्किल होगा कि वो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें। मलिक सही साहब। बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आपने मुतअद्दिद बार अपनी कैंपेन के दौरान कहा कि अगर मुस्लिम लीग नहीं पे ये मुल्क छोड़ा गया तो वो देगी। अब आप जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या आप ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अवाम के मसाइल हल कर पाएगी? अगर नहीं कर पाती तो, अगर अवाम के मसाइल हल नहीं कर पाती तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? I find this a very funny question because लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे कि मैं इलेक्शन लड़ूं और इलेक्शन के दौरान अपने मुखालिफ का तारीफ ही करूं, तनकीद ना करूं। मैं तालियां उनको बजा दूं और उम्मीद रखे कि मुझे वोट पड़ेगा। मैंने ज़रूर जो उनका कुठाया है
उनको भी मेरे ख्याल में मानना चाहिए कि जो गलतियां हुए हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उनके अपने फैसले हैं जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है। ये जमहूरियत का असूल है, खास तौर पे इलेक्शन के दौरान तो हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है कि उनकी जो कोताहियां हैं, उनमें उन्होंने जो गलतियां किया है, उनमें उनके पॉलिसीज पे जो हमारा एतराज़ात है उस पे हम जोर दें, उस पे हम हाईलाइट करें। अब जहाँ तक आपकी दूसरी सवाल है, अगर पाकिस्तान के अवाम मुझे मैंडेट देते तो फिर बिल्कुल अब मैं कहता कि नहीं, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। अब मुझे वो मैंडेट नहीं दिया गया। जहाँ तक मुस्लिम लीग का पॉलिसीज़ के सवाल है, ज़रूर हमारा मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ राय होगा, मगर पार्लियामान की खूबसूरती ये है, जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि आप अपना राय रखते हो, मैं अपना राय रखता हूँ। आप समझते हैं कि आपका सबसे बेस्ट राय है, सोल्यूशन है किसी एक मसला का। मैं समझता हूँ कि मेरा राय, मेरा मौक़िफ़ सबसे बेस्ट सोल्यूशन है किसी मसला का। हो सकता है कि आपका राय सही हो सकता है कि मेरा राय सही हो। उससे भी ज़्यादा मुमकिन ये है कि शायद मेरा राय और आपके राय के दरमियान में जो राय है वो सबसे बेस्ट हल हो उस मसला का। तो पार्लियामान का, जमहूरियत का ये एक तरीका है कि हम पार्लियामान में और पार्लियामानी जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं। तो अगर कंसेंसस की बुनियाद पे हम फैसले करते हैं तो मेरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को एड्रेस कर सकेंगे। अगर हम पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसले हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो उसका नुकसान ना सिर्फ एक सियासी जमात का होगा, उसका नुकसान इस मुल्क का होगा। शुक्रिया। बिलावल साहब, ये बताइए कि आपने अपनी पूरी कैंपेन जो चलाई, आपने पहले मंशूर भी दिया। हमने देखा कि माजी में पंजाब आपका गढ़ होता था, लेकिन आज पंजाब में आपको चंद सीटें मिलती हैं। तो यही मफामत की पॉलिसी पहले भी आपका सियासी नुकसान कर चुकी है। क्या अब आप समझते हैं कि जो आपने जियाले को थोड़ा जगाया था, क्या वो जियाला फिर आपके मंशूर के साथ खड़ा होगा? देखो, आप जो अगर मैं सिर्फ अपने लिए सोचता ना तो बड़ा आसान होता। मैं इधर खामोश होकर बैठ जाता, मैं कहता खान जाने, मियाँ साहिबान जाने, वो हुकूमत बनाए, मैं नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताएं कि हालात क्या है इस मुल्क में, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, कराची की सूरत हाल क्या है, सूबा पंजाब, सूबा पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल मेरा फ़ायदा है। मैं इस पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करना चाहती थी तो हम पीटीआई को भी और नून लीग को कहते कि आप हमें बना दे, वरना ये नहीं होता। मगर क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेगा? क्या वो पाकिस्तान के इश्यूज जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से, उसका कोई हल निकलेगा? ये मुफाहमत नहीं है, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है, ये पाकिस्तान के अवाम के हम सोच रहे हैं। जरूर मेरा इसमें सियासी नुकसान होगा, मगर आपने हर मौक़िफ़ पे ये सोचना है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मेरा सियासत अहमियत रखता है, मेरा अपने आप को हर कीमत पे किसी कुर्सी पे बिठाने इस मसाइल का हल है, या इस निज़ाम को जिसके लिए हमने शहादतें दी, जिसके लिए मेरे कारकुनों ने, मेरे ख़ानदान ने, मेरे पार्टी ने शहादतें दी, इस निज़ाम को हम चलाएं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्पेस है पंजाब में, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत, और इस साजिश जो है वो इस 2024 के इलेक्शन में मौजूद था, वो एक अमल जारी है। मगर मैंने आपको कहा था ना, मैंने वालिद साहब से कहा इस चीज़ का फैसला मुझे दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इस इलेक्शन में करवाया गया उसका फैसला होना पड़ेगा। मैं ये नहीं उम्मीद रख सकता अपनी पार्टी के साथ कि हम हर बार उनको कहें कि हम जमहूरियत के खातिर, हर चीज़ के खातिर, और बार बार हमारे साथ इस किस्म का सलूक किया जाए। और आखिर में जो तमाम सियासी जमातें से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस इलेक्शन में अब किसी कोई रहा नहीं ना जो 30 साल से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत थी,
जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, आज आपको पता है कि आपको कैसे और क्यों फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन से मिलते हैं? इसलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाए, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ के दौर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाते हुए आपका फॉर्म 45 का रिजल्ट पोलिंग स्टेशन से निकलवा दिया। आपको पता है कि इंटरिम हुकूमत में जो कंसेंसस का फॉर्मूला था वो कैसे हुआ, ताकि कोई बायस सेटअप ना आए, मैं अपनी मर्जी से ना करूं, हम मिल बैठ के ऑपोजिशन की बात करें। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अमेंडमेंट लेकर आए और हमारा हुकूमत था, हम अमेंडमेंट नहीं लेकर आते 2013 के इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन, अपना मर्जी का इंटरिम गवर्नमेंट, और हम धांधली भी कर सकते थे। लेकिन हमने वो रिफॉर्म अपने दौर में लेकर आया कि हम अपॉइंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके करेंगे, हम इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके करेंगे। किसने कहा पीटीआई को कि मैदान छोड़े? किसने कहा उनको कि कायदे इस इख्तिलाफ का ओहदा छोड़े? अगर राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब मिलके इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, अपॉइंटमेंट्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा। अब आप चाहते हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि मैं इंतहा पसंद वाले सियासत करूं, वो तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीरियस जमात है। मैंने इस कैंपेन में और अपने सियासत में साबित कर दिया है कि बाकी सियासतदान मुझे उम्र में ज़रूर बड़े होंगे, मगर पाकिस्तान के अवाम ये मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि मैं अपनी बेनिफिट देखते हुए कोई एक्सट्रीम पोजीशन लूंगा। साहब ये बताइएगा, एक हिस्सा तो आपने जवाब दे दिया अभी, लेकिन इसी के साथ सप्लीमेंट्री है कि आपने अभी जिक्र किया कि पंजाब में कुछ पार्टी के साथ साजिश है, उसके लिए बताइएगा कि साजिश किसने की, अगर मेनली उसमें कहीं पे आपको रिश्तेदार नजर आते हैं तो आप लोगों के साथ बैठे हैं। फिर जिन तहफ़्फ़ुज़ात की आपने बात की है तो इलेक्शन के हवाले से आपने सदन में पहले सबके सामने रखा है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात जो साबित हो जाते हैं, वो तमाम जो आपके खदशात हैं वो साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इश्यूज उठाए गए हैं, हमने इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने रखा, हमने इलेक्शन कमीशन को लिखते रहे जो भी हमारा एतराज़ात हैं। वालिद साहब से इसलिए मैं फैसला चाहता हूँ कि वालिद साहब ने सीएसी को ये गेंदबाजी लगाई इलेक्शन के दौरान कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और मेरे लोगों का एतराज़ात है उस पर, तो वो ज़रूर उठाया जाएगा। जहाँ तक अगर उन एतराज़ात की वो उनको हम एड्रेस कैसे करेंगे, एड्रेस तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आएँ और इस किस्म का कानून साजी करें, इस किस्म का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास करें जिससे आगे जाके कोई इलेक्शन में ना मैं उंगली उठा सके ना कोई और उंगली उठा सके। यही वाहिद तरीका है कि हम इस इशू को एड्रेस करें। लेनी सर, We just had a press conference around the corner. They've merged with the NWS, which gives them access to a proportion of the reserve seats, and have demanded a recount in 55 contentious seats. And they say that this will give them an overall majority and enable them to form government, given the possibility, probability that many of the independent seats will go this year. What's your assessment of this calculation and how realistic it is? I think it's extremely unrealistic, and I think that unfortunately the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election.
despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf, the rigging has been done in their favor, not against them. We all remember 35 punctures and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I've expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement, it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges, or other political parties. It will be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains,
damage not only Pakistan's democracy but Pakistan's economy and Pakistan's federation. लास्ट क्वेश्चन जी सोलंकी साहब. चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि कराची एमक्यूएम के हवाले चेयरमैन साहब कराची एमक्यूएम के हवाले करने का पहले एक तजुर्बा हो चुका हुआ है. एमक्यूएम ने थोड़ी बंद लाशों के अलावा, फंदाखोरी के अलावा, बदअमनी के अलावा कुछ नहीं दिया. पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई हैं. तो आप एक ये बताएं कि एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनवन नशस्तें हैं एमक्यूएम की, और दूसरा कि अब दोबारा बोरीबंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको. मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फैसला करके दें. उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि एमक्यूएम का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है. बिकॉज इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया. इस इलेक्शन में उनके जो दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तफसील में जाना पड़ेगा. मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेस पे हमले हुए, उनकी गाड़ियों को चलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ. आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स इनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. हम उनको भी ये पैगाम देते हैं, आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करो, लिसानी बुनियादों पे, नफरत की बुनियाद पे मेरे शहर को तकसीम हम आपको नहीं करने देंगे. थैंक यू.